નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમંચમાં આપનું સ્વાગત છે। લોકમંચમાં જે ચર્ચા કરી રહ્યા છે મીડિયાને લઈને જે ચર્ચા કરી રહ્યા છે, મીડિયામાં એક વિવાદ અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે, એ મીડિયા માટેનો છે, જેમાં ન્યૂઝ ચેનલોની ટીઆરપીની જે વિવાદ જોવા મળી રહ્યો છે તેની પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે। એટલા માટે કે હમણાં જ મહારાષ્ટ્રમાંથી જે આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા હતા અને ટીઆરપીમાં છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે, ખરીદવામાં આવી છે ટીઆરપી, એવા આક્ષેપ સાથે 4 ચેનલોના નામ પણ આપવામાં આવ્યા હતા। અને એ કાર્યવાહીના ભાગરૂપે આજે આપણે જણાવીએ કે એક સમાચાર એ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે કે દર અઠવાડિયે ન્યૂઝ ચેનલ્સ અથવા તો ચેનલ્સના ટીઆરપી જે રેટિંગ ડેટા હોય છે જાહેર કરવામાં આવતા હોય છે, પરંતુ બાર્ક નામની જે એજન્સી છે કે જેના દ્વારા ટીઆરપીની ગણતરી કરવામાં આવે છે, તેના દ્વારા એક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે આગામી 3 મહિના માટે હવે આ ટીઆરપીના રેટિંગ ડેટા જાહેર કરવામાં નહીં આવે, જે ટીઆરપીનો વિવાદ થયો છે તેને કારણે। અને એનબીએ પણ એને સમર્થન આપ્યું છે, આ યોગ્ય નિર્ણય જણાવ્યો છે। તો હવે દર અઠવાડિયે રજૂ થતા જે ડેટા છે અથવા તો ચેનલ દ્વારા જે દાવા કરવામાં આવે છે કે તેઓ પહેલા નંબરની ચેનલ છે, સૌથી આગળ દેખાતી અથવા સૌથી વધારે દેખાતી ચેનલ છે, એવા જે દાવા છે એ હવે દાવા જોવા નહીં મળી શકે, કારણ કે ડેટા જ જાહેર કરવામાં નથી આવવાનો। આને પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે, મારી સાથે ચર્ચામાં જોડાયા છે વરિષ્ઠ પત્રકાર તરીકે ભાર્ગવભાઈ પરીખ, વિવેક ભટ્ટ અને આલોક મહેતા। આપ ત્રણેયનું સ્વાગત છે ચર્ચામાં। ભાર્ગવભાઈ, સૌથી પહેલાં આપને પૂછવા માંગીશ કે પહેલાં તો આ વિવાદ પર આપની શું રિએક્શન છે? જે કદાચ આપને ખ્યાલ હશે એટલા માટે પૂછી રહ્યો છું કે પહેલી વખતનો આ વિવાદ ન માની શકીએ, થોડાક સમય પહેલાં પણ આ વિવાદ ઊભો થયો હતો, ટીઆરપીને લઈને ચેનલ પર આક્ષેપ થયા હતા, શું કહેશો આપ? ટેમ ઉપર ઘણા બધા આક્ષેપો થયા હતા। ટેમના પછી ટેમની ઉપર થયેલા આક્ષેપો ઉપર કોર્ટની અંદર પણ ગયા હતા અને ટેમ ઉપરના આક્ષેપોના કોર્ટમાં ગયા પછી બાર્કની રચના થઈ। એટલે બાર્કની જે રચના થઈ એ 2014ની અંદર બાર્કની રચના થઈ। એની શરૂઆત, જે ગઠન થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ હતી, એ 2013 થી શરૂઆત થઈ હતી। 2014ની અંદર બાર્કની રચના થઈ અને બાર્કની જે રચના થઈ એ બાર્કની જે રચના થઈ એ તમને બહુ જ, હું નામ નહીં આપું એ ચેનલનું, પણ એક ખાનગી ટીવી ચેનલની ઓફિસની અંદર બાર્કના અધિકારીઓ શરૂઆતમાં બેસતા હતા અને આ ટીવી ચેનલના એડિટરનો એક પ્રોગ્રામ નંબર 1 કરવાની અંદર એમને મદદ કરી હોવાનો આક્ષેપ એ જમાનામાં થયો હતો। કારણ કે હું આક્ષેપ એટલા માટે કહું છું કે આના કોઈ પુરાવા નથી, એની ફરિયાદ થઈ નથી અને એના કારણે એક પત્રકાર મુકેશ સિંહ હતા, એમને નોકરી પણ છોડવી પડી હતી, કારણ કે એમણે આ તમામ ગેરરીતિનો વિરોધ ઉઠાવ્યો હતો। હવે રહી વાત બાર્કની વાત કરીએ છીએ, એટલે બાર્કની જરૂરિયાત કેમ પડે છે? તો સૌથી પહેલા ટીઆરપી, દુનિયા આખી જાણે છે ટેલિવિઝન રેટિંગ પોઈન્ટ ટીઆરપી, પણ ટીઆરપી કરતા વધારે મહત્વનું જે છે જીઆરપી અને સીપી આરપી બંને મહત્વનું છે। જીઆરપી ઉપરથી તમારી સીપી આરપી નક્કી થાય છે અને સીપી આરપી એટલે ક્રેડિટ રેટિંગ પોઈન્ટ નક્કી થાય છે। હવે જીઆરપી ઉપરથી તમે કહી શકો કે તમારા ટીઆરપી ના ડેટાના આધારે તમે જીઆરપી કાઢો અને તમે કઈ જગ્યાએ, એટલે કે કઈ એજ ગ્રુપની અંદર સૌથી વધારે દેખાવ છો, કઈ એજ ગ્રુપની અંદર સૌથી ઓછા દેખાવ છો, એ બધાનો એક સરવાળો બને, એના ઉપરથી ક્રેડિટ રેટિંગ પોઈન્ટ નક્કી થાય। એટલે જાહેર ખબરનો ભાવ શું હશે, બીજી ચેનલ કરતા અમે 20 થી 25 ના કન્ઝ્યુમર જોડે વધારે છીએ, અથવા 30 થી 35 ના કન્ઝ્યુમર જોડે વધારે છીએ, 35 થી 40 ના કન્ઝ્યુમર જોડે વધારે છીએ, એના ઉપરથી આ ક્રેડિટ રેટિંગ પોઈન્ટ તૈયાર થાય। અને આખી જે મારામારી છે આની ઉપર જ રમાતી હોય છે, કારણ કે હું તમને બહુ જ સ્પષ્ટ કહું કે ટેલિવિઝનનું ટોટલ 32,000 કરોડનું માર્કેટ છે અને એની સામે ટેલિવિઝનનો જે ખર્ચો છે એ 36,000 કરોડનો છે। એટલે બાકીના જે 4,000 કરોડ રૂપિયા કેવી રીતે લઈ લેવા, કેવી રીતે ભેગા કરવા, એના માટે આ ટીઆરપી નો આખો ખેલ રચાય છે। ટીઆરપી પછી જીઆરપી, જીઆરપી ઉપરથી ક્રેડિટ રેટિંગ પોઈન્ટની શરૂઆત બનાવવામાં આવે છે। ઓકે, વિવેકભાઈ, આપના મતે ટીઆરપી ની ગેમ શું છે? શું લાગે છે આપને કે ન્યૂઝ ચેનલ્સ જે છે એ જે પ્રકારે ટીઆરપી ની ગેમમાં જોવા મળે છે, એમાં હવે જે વિવાદ થઈ રહ્યો છે એની પર આપનું શું રિએક્શન છે? જો ચોખ્ખી વાત અને સીધી અને સટ વાત કરું તો આ દેશનું પતન આ મીડિયા કરશે જો આ ટીઆરપી ના ખેલ રહે। ઓકે, કારણ કે આ ટીઆરપી ના ખેલ થાય છે, બધું ભેળચાલ થઈ જાય છે અને જે રિયલ કન્ટેન્ટ છે, કે જે જર્નલિસ્ટિક કન્ટેન્ટ છે, હા, યસ, બહુ જ પતન થઈ રહ્યું છે। એક વ્યક્તિ ગમે તે કોઈ પણ વસ્તુ કરે, એને થોડાક નંબર મળી જાય, એને થોડી ટીઆરપી મળી જાય, એટલે આ બધા ચેનલો એ જ રંગરૂપે ચાલુ થઈ જાય છે। ઓકે, વર્ષો પહેલા સાપ, બિચ્છુ અને વાઇલ્ડ લાઈફ, વાઇલ્ડ લાઈફ ચાલુ થઈ હતી ટીવી પર, બધા જ લોકો એના ઉપર આવી ગયા હતા। જે ખરેખર મુદ્દાઓ છે, જેને કારણે જર્નલિઝમ બધા લોકો ભણ્યા છે, જેને કારણે જર્નલિઝમ કરવું જોઈએ, એ બધું જર્નલિઝમ અત્યારે ખોટીએ ટીંગાડી દીધું છે
અને બધા જ લોકો તમાશાઓ, ડ્રામા અને વાદ વિવાદ અને એકબીજા ઉપર આક્ષેપ પ્રત્યાક્ષેપ અને એક તરીકેથી વલ્ગારિટી એવી વસ્તુઓ બતાવો જેથી લોકો વધારે આકર્ષિત થાય, એવું ક્રાઇમ બતાવો, એવા સીન બતાવો, આ બધી વસ્તુઓ બતાવો જેથી લોકો વધારે જોડાય, સેન્સેશનલાઇઝ કરી નાખો, સેન્સિટિવિટી વધારી નાખો, થ્રિલર પોઈન્ટ નાખી દો, સસ્પેન્સ નાખી દો, એકબીજાની ખેંચાઈ કરો. એના કરતા આવા બાર્ક હોવા જ ના જોઈએ, આવા ટેમ હોવા જ ના જોઈએ. અને જો હોવા જોઈએ તો સરકારી કોઈ એવી રચના થવી જોઈએ એના ઉપર કોઈ ભરોસો થઈ શકે. કારણ કે સૌથી મોટો ઓબ્જેક્શન એ છે કે આ દેશમાં 130 કરોડની જનસંખ્યા છે અને 30,000 મીટર એ નક્કી કરી નાખશે કે નંબર 1 કોણ છે. કરી નાખશે કે લોકોને શું ગમે છે. અને બીજી ખાસ વસ્તુ એ કે એમાં એસીસી A, B અને C અને D આ 4 તરીકેના વસ્તુ નાખી દીધા છે કે કેવા લોકોને શું જોવે છે. એટલે ડી એટલે એમને એમ કે સાવ નિમ્ન વર્ગ. નિમ્ન વર્ગ ને એસીસી A એટલે ઉચ્ચ વર્ગ. બરાબર. આ 4 વર્ગોમાં કેવી રીતે ડિફરન્શિએટ કરો તમે કન્ટેન્ટ, એ સૌથી મોટો સવાલ છે. બિલકુલ યસ છે એ બધાને બરાબર છે. હવે તમે એસીસી A અને મેટ્રો સિટી, નોન મેટ્રો સિટી અને વિલેજ ચાર લોકોને જોવાની પદ્ધતિ અલગ હોય, એમના મુદ્દાઓ અલગ હોય, એમની વસ્તુઓ અલગ હોય છે. અને પછી એમાંથી એક એગ્રીગેટ વેલ્યુ કાઢીને આપી રહ્યા છે કે આ નંબર 1 કે આ નંબર 2. હવે એને અંદર બાયફર્ફિકેશન કરો તો કોઈ વિલેજમાં નંબર 1 હોય અને નંબર 1 હોય. તો નંબર 1 ની જે ગણતરી છે એ એકદમ ખોટી ગણતરી છે. કારણે બાર્ક ભલે ગમે તે અત્યારે એમને કીધું અત્યારે બધું આ ઊભું થયું છે એને ઠંડુ પાડવા માટે આ 3 મહિનાનું સસ્પેન્શન છે, પણ ખરેખર આ ગેરરીતિનું સૌથી મોટું બાજાર છે. અને જે સાચું અને સારું કામ કરે છે એમની આમાં બાર્ક આવતું જ નથી. જેમ કે ફોર એન એક્ઝામ્પલ તમારું જ ચેનલ ની આપણે વાત કરીએ, જો જીટીપીએલ ની વાત કરીએ તો સૌથી જૂનામાં જૂનું ચેનલ છે, સૌથી સારામાં સારું કન્ટેન્ટ આપે છે, દરેક ઝોન ને આપે છે. પણ જીટીપીએલ ને એ લોકો ક્યારે બાર્કમાં લેતા જ નથી. એનો મતલબ એવું સમજવાનું કે જીટીપીએલ ઉપર કોઈ વ્યુઅરશિપ જ નથી. એટલે વ્યુઅરશિપ જોવાના બધા ક્રાઇટેરિયા હોય છે. અને પણ વિવેકભાઈ આનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જોવા મળી રહ્યો છે, તો પ્રોફિટ ઓરિએન્ટેડ બિઝનેસ માનીને ન્યૂઝ ચેનલ ચલાવવામાં આવે છે, એટલા માટે જ કોર્પોરેટ હાઉસ આપણે ગણતરી કરી રહ્યા છે કે ઉભા થયા છે. તો આનાથી કોઈ લાભ થઈ રહ્યો છે સોસાયટીને કે દેશને? દરેક ન્યૂઝ ચેનલ જે છે એને ચલાવવા માટેનો એક ખર્ચો થાય છે. ખર્ચો પૂરો પાડવા માટેનો સૌથી મોટો આધાર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આવે છે. ચોક્કસ, બિલકુલ. અને એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જે ચેનલને જે આ રેટ ઉપર મળતી હોય કે 10 સેકન્ડનો ભાવ તય થાય કે 10 સેકન્ડના 700 રૂપિયા, 700 રૂપિયા, 800 રૂપિયા, 900 રૂપિયા, 1000 રૂપિયા, એ 10 સેકન્ડના રેટ તય કરવા માટે આ એક કે બાર્ક જે બતાવશે એના હિસાબથી અમે રેટ તય કરીશું. આ જ રીત જ ખોટી છે. ઓકે, આની સામે વિકલ્પ શું હોવો જોઈએ વિવેકભાઈ? આપણે ચર્ચા કરીએ, પણ આલોક મહેતા પણ આપણી સાથે દિલ્હીથી જોડાયા છે. आलोक जी, आपकी सबसे पहले क्या राय है, जो जर्नलिज्म या फिर ये टीवी मीडिया जो न्यूज टीवी चलता है अभी, उसमें क्या बदलाव आप देख रहे हो आपके अनुभव के हिसाब से? और दूसरी बात, ये जरूरत क्यों खड़ी हो रही है अभी के माहौल में कि मीडिया में, न्यूज चैनल्स में जैसे कि आक्रामक कंटेंट्स दिखाए जा रहे हैं, नफरत वाले कंटेंट्स भी दिखाए जा रहे हैं, तो क्या ये भी अपने को ये मानने का कि टीआरपी का एक हिस्सा है या कोई दूसरी वजह? देखिए रमेश भाई, अभी हमारे बच्चों ने, मैं गुजराती नहीं बोल रहा हूँ लेकिन मैं समझ रहा हूँ जो भी उन्होंने कहा, और मैं बात से सहमत हूँ। हमारी पूरी क्रेडिबिलिटी दांव पर है, पूरे मीडिया की और इंडिया की क्रेडिबिलिटी। देखिए जो इस तरह की सनसनीखेज जिससे बताते हैं, और मैं तो ये टीआरपी वाले मामले में भी आपको कहूंगा, समय जो होड़ बची है वो पहले का, जैसे उन्होंने सांप बिच्छू वगैरह भी जिक्र किया, वो था, उससे भी ज्यादा हो गया कि आपस में जैसे कहते हैं कि समाज में नफरत पैदा कर दे, ऐसे लोगों का समर्थन भी वहां पर आने लगे जो कम्युनल कह सकते हैं, या चाइना पाकिस्तान का समर्थन भी करते हो, ताकि लोग भड़के। तो ये जो है, और उसके पीछे एक और कारण है कि ये जो एजेंसी है, पहले भी मैं 2007 के आसपास मैं आउटलुक में जब हिंदी में एडिटर था, कि हमने एक बड़ी स्टोरी छापी थी। उसके बाद थोड़ा सा और भी कुछ संशोधन हुआ। पहले 8,000 ही मीटर लगे होते थे। बताइए 100 करोड़ 100 करोड़ के देश में 8,000 से क्या डिसाइड कर सकते हैं कि कंटेंट? अभी जैसे बिल्कुल सही कहा, गुजराती चैनल, मलयालम चैनल, तेलुगु चैनल,
इसकी एक विश्वसनीयता या लीडरशिप यदि जो व्यूअरशिप है के मुकाबले में जो सो कॉल्ड नेशनल, जबकि मैं दिल्ली में बैठता हूँ, फिर भी मैं हमेशा कहता हूँ कि उन लोगों तक मैसेज पहुंचना चाहिए। और उसके लिए दो दोषी कौन है? देखिए, जो ये एजेंसी विदेशी उनके अनुबंध के साथ बनी हुई आज भी। हाँ बिल्कुल। भारतीयकरण, जब हम हर चीज के लिए कहते हैं कि भारतीयकरण होना चाहिए, तब विदेशी फार्मूले पर एक तो ये फार्मूला गलत है, दूसरा क्या है कि ये जो अभी कहा गया, अभी जो होड़ बची उसमें कभी रिया को आगे बढ़ा दो, कि कभी सुशांत के मामले में बना दो, और या किसी भी दंगे पर बैरट को, हाथरस को ऐसा बना दो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी न्यूज वो है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके बारे में कोर्ट भी ना करे अभी, लेकिन जो सेल्फ रेगुलेशन की बात थी, और सरकार उस समय तो बल्कि मोदी जी की सरकार नहीं थी, 2006 में व्हेन आई वाज प्रेसिडेंट ऑफ एडिटर्स गिल्ड, तब भी सरकार ब्रॉडकास्टिंग के बिल लाने वाली थी। तब हम लोगों ने लिख के दिया और ब्रॉडकास्टर्स ने भी कहा कि हम अपना कोड मानेंगे। अब वो अपना कोड ही नहीं मानते। भाई, जब आप गीता की कसम खा के, जैसे हम लोग अदालत में जा झूठ बोले, ये उस कोड को भी, और एडिटर्स गिल्ड ने तो कोड ऑफ एथिक्स बनाया, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो राष्ट्रपति आकर के खुद रिलीज करके गए, जब उसको फॉलो नहीं करने का ट्रेंड है, ये डेंजरस ट्रेंड है। और दूसरा टीआरपी का जवाब ये है, जैसे अभी कहा गया, अभी तो सस्पेंड किया गया, एक तो उसका ज्यादा बढ़ना चाहिए, चाहे वो गुजराती के चैनल यदि 50 लाख लोग देख रहे हैं या 5 करोड़ देख रहे हैं, तो व्हाई नॉट इंक्लूड देम। और सरकार का और दायित्व है, माफ कीजिएगा, राज्य सरकारें, मैं कह रहा हूँ गुजरात नहीं, राजस्थान, सारे देश की सरकारें, बिल्कुल, खाली टीआरपी और प्रिंट कितना ज्यादा छप रहा, चाहे वो रद्दी में जा रहा हो, चाहे वो चैनल कोई देखे, लेकिन वो दिखा दे कि साहब हमारा तो इतने करोड़ लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, के आधार पर उनको जो पब्लिक अवेयरनेस है कोरोना के बारे में, उन लोगों को पैसा मिल जाएगा जो नहीं मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए जो जनता तक पहुंचते हैं और जिसकी विश्वसनीयता है। जैसे आपका चैनल है, लोग भरोसा करते हैं कि यदि जीटीपी कुछ दिखाएगा, मतलब हमको आज ये ध्यान रखना है, आज तूफान आने वाला है, या हमको बीमारी का ये डॉक्टर सही बताएंगे। आप ऐसे चैनल को बताएं जिसमें कहें कि ये जादू मंत्र तो हो जाएगा, ट्रम्प का ठीक हो गया, तुम्हारा भी ठीक हो जाएगा। ये जो चीजें हैं ये खतरनाक है, और इस पर कोई अंकुश आपस में मिलके सोसाइटी। आलोक जी इतने सालों से हो रहा है, तो अंकुश क्यों नहीं है? वैसे तो हमारे वहां पे टेलीविजन एक्ट भी है, पीसीए भी है, फिर भी क्यों अंकुश नहीं हो रहा है? क्या वजह लग रही है आपको? देखिए, उसकी वजह है ना, घंटी कोई सरकार भी बांधने जाती है तो देखिए सभी लोग यही अल्लाह बजा रहे, साहब बिल्कुल अंकुश कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये सही है कि कमेटी, मेरा ये कहना है कि जो इनका जो सिस्टम है, यूरोप में भी रहा हूँ, 3 साल रहा हूँ, बाहर भी जाता रहा हूँ, हमारे और मित्र भी जाते रहे होंगे। देखिए, वहाँ का जो इनकम का जो स्ट्रक्चर है, परिवारों का जो स्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ 3 जनरेशन देखती है। आपकी हमारी मतलब हमारा नहीं, लेकिन एक परिवार में माँ बाप भी देख रहे हैं, उनके बच्चे देख रहे हैं, बच्चों के बच्चे देख रहे हैं। और ये जो पैमाना है मीटर वाला, ये ऐसे घरों का है जिनकी सबकी इनका मान लो $5,000 है, किसी के 3,000 मिनिमम है, सबका एक सैलरी है। हमारे यहाँ तो एक बगल के मकान वाले को 5,000 मिल रहा है, दूसरे को 50,000 मिल रहा है। सही बात है। तो उसको आधार बनाना ही पूरा पैमाना, इसलिए या तो कोर्ट के 3 आदमी की कमेटी हो या सरकार की कमेटी हो। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, सेंसरशिप नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आप देखिए कि अच्छे इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम में भी रेटिंग के नाम पर कुछ भी गलत दिखा के, जिससे नफरत परिवारों में पैदा होती है, दिखाया जा रहा है। ठीक है आलोक जी। ભાર્ગવજી, અહીંયા સવાલ એ થાય છે, આલોકજી એમનો અનુભવ કીધો, પણ ભાર્ગવ, મારો સવાલ એ છે કે આ પ્રજાને, કે લોકોને ગમતું હશે ને, જે ભૂત ભોળાની વાત હોય, કે હમણાં જેમ કીધું વિવેકભાઈએ, સાપ બિચ્છુની વાત હોય, કોઈ ધાર્મિક ડરાવવા માટેની ગતિવિધિઓ હોય, તો આ બધું લોકોને ગમતું હશે તો જ મીડિયા પીરસતું હશે ને? જો આ છે ને, પહેલા ટીઆરપી ની આવી હોડ આટલી બધી નથી કે જ્યાં આગળ આવા જંતર મંતર ને આ બધું આવે। આની શરૂઆત, હું એ ચેનલ નું નામ નહીં દઉં, પણ એની શરૂઆત કુવામાં એક બાળક પડી ગયો ત્યારથી શરૂ થઈ। કુવામાં જયારે એક બાળક પડી ગયું હતું અને એ ખાસો સમય થયો। मैं शायद आलोक जी को ये बात को याद दिलाना चाहूंगा कि आलोक जी, अगर आपको याद हो तो मैं भी उस चैनल में काम कर चुका हूँ। उस चैनल के अंदर कुएं में एक बच्चा गिर गया था, पूरे देश ने उसके प्रार्थना की थी, और वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ है, और वहीं से ये टर्निंग पॉइंट था। पूरा न्यूज से हटने का वो टर्निंग पॉइंट था। तब तक कभी हमने न्यूज को इस तरह से नहीं देखा, कुएं में गिरते हुए बालक को 3 दिन तक दिखाओ आप, और उसके ऊपर पूरे देश से प्रार्थना करवाओ, और उसके बाद पूरी जगह पे लगा दो। उसके बाद जब रिपोर्टर की जो हालत होती थी, तो रिपोर्टर को वो कहीं दुकान पे खड़ा कर दिया जाता था, कहीं किसी के घर पे खड़ा कर दिया जाता था, किस तरह से प्रार्थना हो रही है, किस तरह से हमारा टीवी यहाँ पे इतने आगे आ रहा है। तो ये तोड़, उसका तोड़ जब निकला, तो उसका तोड़ ये
दूसरा निकला, सांप बिच्छू वाला निकला, बिना ड्राइवर के गाड़ी कैसे चल रही है वो सब निकला, बिना पानी की गाड़ी कैसे चल रही है वो सब निकला। तो ये सब जो चीजें थी वो सेक ऑफ क्यूरियोसिटी। यहाँ पे सेक ऑफ क्यूरियोसिटी कुछ समय के लिए लोग आते थे, सेक ऑफ क्यूरियोसिटी, सेक ऑफ इमोशन, कुछ लोग यहाँ पे आते थे, और वो आने के बाद ये ट्रेंड सेट हो गया। और ये ट्रेंड सेट हो गया, उसके बाद की जो बात है भद्रेश जी, आपको तो बहुत ही आघात लगेगा कि उसके बाद टेलीविजन में ये ट्रेंड हुआ 2012 के बाद कि 50,000 से कम कमाने वाला आदमी टेलीविजन के लिए कभी भी अपना सब्जेक्ट नहीं बना है। मैं खुद की अपनी बात कर रहा हूं। मैंने एक गुजरात की एक बड़ी स्टोरी की थी, जिसको अगर मैंने प्रिंट में पहले की थी उसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला था, और वही चीज मैंने टेलीविजन में की थी। आधे घंटे का प्रोग्राम किया था कि जिसके अंदर गुजरात के जो दलित परिवार है, जो ग्रेजुएशन होने के बाद उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है और उनको सफाई का काम करना पड़ रहा है ताकि वो अपने बच्चों को अब पढ़ा नहीं रहे। उस जो स्टोरी को एक बार हेडलाइन में, 2 बार हेडलाइन में लेने के बाद उसको छोड़ दिया, जिस स्टोरी के पीछे मैंने एक हफ्ते काम किया था। जब मैंने मेरे एडिटर से पूछा, आई वाज असिस्टेंट एडिटर, मैंने मेरे एडिटर से पूछा कि ये स्टोरी क्यों गिरा दी, मैंने इसके पीछे इतनी मेहनत की है और ये स्टोरी लार्जर प्रोस्पेक्टिव में चलनी चाहिए, लोगों की बात के लिए चलनी चाहिए, तो मुझे ये जवाब दिया गया कि कितने दलितों के घर पे टीवी होते हैं, अगर इतने घर पे टीवी होते हैं तो हमें टीआरपी मिलता है, बाकी ये आपको अगर बहुत क्रांति करनी है तो अपने घर का कलर बदल दिया जाए। ठीक है। तो इसके बाद यही समझ सकते हैं कि आप टीआरपी के चलते, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जीआरपी की होड़ होती है, इसके बाद सीपीआर की होड़ होती है, तो क्रेडिट रेटिंग पॉइंट की, और उसी की दौड़ के, उसी की चक्कर के अंदर ये घुमा रहता है। और इसी के लिए आप देखो कि आज मजलूम और नीचे तबके की लोगों की बात आपको टीवी पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रही है, जो पिछले दशक में मिल रही थी। विवेक भाई, आपने बताया कि नुकसान है, इससे देश को, सोसाइटी को नुकसान है, लेकिन मेरा तो सवाल ये है कि एक बिजनेस है ये, अगर टीआरपी का रेटिंग दिखाया जाएगा तो बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनियां अपने को ऐड देगी, तो मीडिया बिजनेस भी चला रहा है ना, उसको भी इनकम खड़ी करनी है, उसको भी खर्चा निकालना है, तो कोई दूसरा रास्ता थोड़ी है, यही होगा ना रास्ता। तो मैं आपको बताता हूं, ऐसा है कि अगर आपको देश को विश्व फलक पे सही ढंग से बताना है या जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड करना है, तो जितने भी न्यूज चैनल के लाइसेंस है, देखिए टेलीविजन में बहुत सारे लाइसेंस मिलते हैं। एक लाइसेंस होता है एंटरटेनमेंट का, एक लाइसेंस होता है इंफोटेनमेंट का, एक लाइसेंस होता है रिलीजियस, एक लाइसेंस होता है आपका न्यूज एंड करंट अफेयर्स का। तो जितने भी न्यूज एंड करंट अफेयर के लाइसेंस हैं, उन तमाम लाइसेंस को बार की श्रेणी से या किसी भी प्राइवेट टीआरपी रेटिंग एजेंसी से मुक्त करना चाहिए। आपकी रेटिंग पॉइंट, आपको बिजनेस चलाना है, क्यों मुक्त करना चाहिए? लेकिन विवेक भाई, मुक्त करने की कोई खास वजह क्या है? बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए मुक्त करना चाहिए क्योंकि जो एक भेड़ चाल मैंने आपको बताई है कि एक पर्टिकुलर चैनल कुछ करेगा और उसको अगर नंबर मिलने लग गए तो बाकी के चैनल भी देखेंगे कि यार इसको ये नंबर मिल रहा है, ये तो पूरा पैसा या एडवर्टाइजमेंट इधर ही ले जाएगा, हमको तो कुछ मिलेगा नहीं, तो वो भी उस पे मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगी ना विवेक भाई। मार्केट में जो कंपटीशन जो है वो हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए न्यूज चैनल में। न्यूज चैनल का मतलब ये होता है कि कौन कितना इम्पैक्ट पे काम होना चाहिए। न्यूज का मतलब होता है इम्पैक्ट। आप देश के ऊपर इम्पैक्ट कितना डाल रहे हो, विश्व के ऊपर इम्पैक्ट क्या डाल रहे हो, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हो। न्यूज का मतलब इम्पैक्ट से होना चाहिए, न्यूज का मतलब तमाशा नहीं होना चाहिए। विवेक भाई, मेरा सवाल ये है, विवेक भाई, तमाशा बन गया जैसे पतन होगा। विवेक भाई, लेकिन ये कॉर्पोरेट हाउस न्यूज चैनल चला रहे हैं अभी, और अभी तो पॉलिटिशियंस भी ज्यादा हिस्सेदारी कर रहे हैं इसके अंदर न्यूज कंपनीज में। तो मेरा सवाल ये है कि कौन डिसाइड करता है इसकी डिजाइन, इसके कंटेंट कौन डिसाइड करता है? वो कॉर्पोरेट हाउस का मालिक डिसाइड करता है कि कोई दूसरा डिसाइड करता है? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो कंटेंट डिसाइड होता है वो कंटेंट डिसाइड होता है बिजनेस को देख के, जबकि न्यूज की वैल्यू की तरह देख के फिर कंटेंट डिसाइड होना चाहिए कि आज कौन सा न्यूज है, क्या मुझे लेना है, उस हिसाब से कंटेंट डिसाइड होना चाहिए। अभी बिजनेस को देख के होता है, अगर किसी कॉर्पोरेट ने बोल दिया मैं अभी एक चाय रिलीज कर रहा हूं, ये चाय से रिलेटेड कुछ करो, तो उस हिसाब से कंटेंट डिसाइड हो रहा है। कोई मीनिंग नहीं है। अभी आप देखो बिग बॉस चल रहा है, ठीक है, अब बिग बॉस में क्या दिखाया जा रहा है? क्या ये हमारे देश की संस्कृति आती है, इस देश की सभ्यता आती है? क्या ये टेलीविजन पे नहीं, विवेक भाई, कहीं ना कहीं देश में ऐसे लोग हैं जिनको ये कंटेंट चाहिए,
उनको ये अच्छे परोसा जा लग रहा रहे है। हैं शायद। नहीं नहीं, गलत बात है। ये परोसा जा रहा है इसलिए लोग देख रहे हैं। आप लोगों अच्छा। को जैसी आदत डालोगे वैसी लोग देखते हैं। इस देश में ऐसा नहीं है। क्यों, ये इससे पहले टेलीविजन नहीं देखी जाती थी? देखी जाती थी ना। मैं बिल्कुल। ये नहीं कह रहा हूं कि आप धार्मिक चैनल बना दो। तो मेरा वही सवाल है विवेक भाई, इसको कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोल कौन करेगा? हाँ, कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल सरकार को करना चाहिए, बट ऑब्वियस है। ओके। और एक बॉडी होनी चाहिए। बहुत सारी गवर्नेंस बॉडी है। क्यों, हमारे बैंक को कौन कंट्रोल करता है? यस। सारे नहीं बैंक लेकिन आजकल आरबीआई है ना। विवेक भाई सरकार की नजरों के सामने, और आपने जो बोला एनबीए संस्था है, अपने पास अथॉरिटी है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी, उसके नजर के सामने तो ये सारे कंटेंट फिर से जा रहे हैं। देखिए, वही मैं आपको कह रहा हूं कि एनबीए मतलब क्या है। हम्म। कोई अथॉरिटी थोड़ी है एनबीए। जी नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है। बिल्कुल। ये कोई ऑथोराइज बॉडी थोड़ी है। हम्म। ऑथोराइज बॉडी क्या है? लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट तो है ना देश में, गवर्नमेंट तो है ना विवेक भाई, सरकार तो है ना। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। हाँ ठीक है? यस। ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है। जी। इस मंत्रालय के पास में एक बॉडी होनी चाहिए। दो बॉडी सारे कंटेंट ऑफ कोड को नक्की करेगा। बिल्कुल। ठीक है, अब कंटेंट ऑफ कोड बना हुआ है केबल एक्ट। हमारे yes, देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कोई अलग से कोई कानून या कोई प्रावधान नहीं है। सही बात है, सही बात है। केबल एक्ट बना हुआ है, वो केबल एक्ट के तहत पे चलाने की बात है। अब केबल एक्ट बन के हो गया है, ये 50 साल हो गए। इसके बाद ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम आ गया, सैटेलाइट टीवी आ गए। बिल्कुल। लाइसेंस इशू कौन करता है? एमआईबी लाइसेंस इशू करती है। उसके ऊपर कंटेंट क्या चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ये अभिव्यक्ति की आजादी पे रोक की बात नहीं कर रहा हूं, सेंसरशिप की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एक अथॉरिटी, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, और न्यूज चैनलों को इससे बाहर रखना चाहिए। न्यूज चैनल के लिए अलग चाहिए, बिकॉज न्यूज का मतलब लोग भरोसा करते हैं। आपने बता दिया कि यहाँ पे ये है तो लोग ऐसा समझ जाएंगे, भरोसा करेंगे। सही बात है। एंटरटेनमेंट चैनल फिक्शन है। हाँ यस। लेकिन न्यूज चैनल फिक्शन नहीं हो सकता। सही बात है आपकी। आपके रिपोर्टर के मगज में जो आया, उसको जो अच्छा लगा, या चैनल के मालिक चैनल के एडिटर को जो अच्छा लगा वैसा परोसने लग गए, या बिजनेसमैन को अच्छा लगने वाला परोसने लग गया, किसी नेता को अच्छा लगने वाला परोसने लग गए, तो फिर हो गया। फिर तो लोग, हाँ सही बात है। आज किसी न्यूज चैनल पे लोग भरोसा नहीं करते हैं। इसका पीछे का रीजन क्या है? हाँ सही है, आपने एंटरटेनमेंट दिखाने की बात हो, सरकार के अगेंस्ट में बोलने की बात ना हो। अच्छा आलोक जी, यस आलोक जी, विवेक जी जिस तरह से बता रहे हैं, एक बात, एक लास्ट हाँ बात। यस बताइए बताइए। इसमें एक ट्रेंड चला, सरकार के विरुद्ध में चलो, हाँ बिल्कुल, तो टीआरपी आती है। हाँ यस। फिर एक बीच में ट्रेंड चला कि सरकार के साथ में चलो, तो टीआरपी आती है। हाँ। आप पिछला, ये जब से बार्क आया है, पिछले 6 महीने, आप 6 साल में, 8 साल में आप देखो, तो एक ट्रेंड आया कि सरकार के विरुद्ध, तो सारे चैनल सरकार के विरुद्ध चलाने लग गए, और उसके बाद ये ढूंढने लग गए कि यार सरकार की कमियां ढूंढो। बिल्कुल सही है। तो टीआरपी आएगी। अब ना चाहते हुए भी लोग सरकार की कमियां ही ढूंढ रहे हैं। सही है कि नहीं, सरकार का अच्छा बताओ तो टीआरपी आती है, तो सारे लोग। ठीक है यस यस। आलोक जी, लेकिन इससे जर्नलिज्म को कितना इफेक्ट हो रहा है, क्या लग रहा है? आज की पत्रकारिता खत्म हो रही है क्या? पत्रकारिता अब नाटकीय रूप में हो रहा है? क्योंकि अभी भार्गव ने बोला इतनी अच्छी स्टोरी को ऊपर से एडिटर ने मना कर दिया कि नहीं चलाना है, भले उन्होंने कितनी भी मेहनत करी, तो ये भी क्या चिल्लाने लगेंगे? ये भी क्या घूमते फिरते रहेंगे, उछल कूद करते रहेंगे, इस तरह की रिपोर्टिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा? मैं थोड़ा सा, भार्गव भाई भी ठीक कह रहे हैं, विवेक जी, दोनों चीजों जोड़ रहा हूँ जी। ये सारे को आप मत मिलाइए। मैं अभी आपको क्या कहा कि गुजराती में या मलयालम में भी बहुत अच्छे काम करने वाले भी है ना, तो हो सकता है कि उसका रेटिंग वैसा नहीं हो। सही है कि भारतीय भाषाओं में हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, इसलिए ये जब हम कहते हैं कि सारा जर्नलिज्म पिट गया, सब खराब हो गए, यस। भार्गव जी अपने साथ बैठे, तो कई बार हो सकता है जब काम करते हुए भी कठिनाई आती है, तो एक तो जर्नल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि मीडिया जैसे प्रेस काउंसिल के पास भी हथियार नहीं है, हाँ बराबर, कर नहीं पाता है जी। ऐसे ही मीडिया काउंसिल जैसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए होना चाहिए, जो अभी विवेक भाई कह रहे थे वो। अच्छा, उसमें सरकार नहीं, उसमें भी जैसे प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जो है वो कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बाकायदा एक मीडिया काउंसिल, क्योंकि आज अब कई बार, मैं प्रेस काउंसिल का मेंबर कई साल पहले था, हाँ बराबर, हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी एक, या तो उसी को मर्ज कर दो, बनाओ। सरकार इतनी आई चली गई, 2 सरकारें हैं, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए कि भाई एक, और इसलिए सरकार का दोष क्या है? वो सोचते हैं कि भाई उसको पास, नहीं दोष क्यों, सरकार का कुछ फायदा होगा ना सरकार का, अपोजिशन को कर देगा। तीसरा मेरा एक आग्रह है, क्योंकि गुजराती चैनल बड़ा कारपोरेट वर्ल्ड भी देखता है, सही बात है, बड़े हाउसेज देखते हैं,
मेरा कहना है कि वो खाली एड एजेंसी के थ्रू काम करते हैं। यस, उनको बेहतर है कि उनके जो बड़े करता धरता है, जो अभी विवेक भाई कह रहे थे, भाई अच्छा कंटेंट देंगे, हम उसको विज्ञापन देंगे, अपने आप उसकी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। लेकिन यदि पैसा होगा, नहीं, ये पॉजिटिविटी की बात है। स्टोरी को वो दूसरा भी चला लेगा। हाँ, सही बात है। पैसा ही नहीं मिलता है, पैसा उनको मिलता है जो ठग रहे। आलोक जी, समय कम पड़ रहा है। ओके आलोक जी, समय कम पड़ रहा है, लेकिन ભાર્ગવ તમે એક વિવેકભાઈની વાતમાં કહેતા હતા, એક સવાલ ભાર્ગવભાઈ આપણે પૂછી લઉં કે કોર્પોરેટ હાઉસ તરીકે જો માલિક જે ચલાવતો હોય એનો પ્રોફિટ જ જોવાનો છે અને કદાચ ફરક પડે છે ખરી કે ન્યૂઝ કન્ટેન્ટ્સ કયા જાય છે, એન્ટરટેનમેન્ટ જાય છે કે નહીં જતું, લાગે છે આપણે? આમાં એક એડિટર તરીકે મેં પણ કામ કર્યું છે. આની ઉપર ઘણું બધું પ્રેશર રહે છે એક એડિટર ઉપર, કે તમારી ઉપર એટલું બધું પ્રેશર રહે છે કે તમારી એડવર્ટાઇઝિંગ રેવન્યુ કેમ વધતી નથી. હવે એના કારણે એડિટરે એની અંદર ડ્રેગ થવું પડે છે. એડિટરની ઈચ્છા હોય કે ના હોય, એડિટરની ઈચ્છા હોય કે મારે આ કન્ટેન્ટ દેખાડવું છે, આ નથી દેખાડવું, પરંતુ સરવાળે અંતે જયારે ચોપડાનો હિસાબ લઈને બેસવામાં આવે છે ત્યારે આન્સરેબલ એડિટરને બનાવવામાં આવે છે. માર્કેટિંગ એમાંથી છૂટી જાય છે, માર્કેટિંગ મોટા પગાર લઈને બેઠું હોય છે એમાંથી છૂટી જાય છે, તમારું બીજી સિસ્ટમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ એમાંથી છૂટી જાય છે, પરંતુ ડ્રેગ તમને કેવી રીતે કરવામાં આવે છે આમાં અનાયસે એડિટર પોતે ડ્રેગ થઈ જાય છે અને એ ડ્રેગ થવાના કારણે આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. ઓકે ભાર્ગવભાઈ, આ બાગના અત્યારે પ્રતિબંધી કોઈ ફરક પડવાનો ખરી એવું લાગે છે આપને 3 મહિના માટે? હું જોઉં છું કે જયારે 30,000 મીટર થી તમે પારાશીશી 30,000 મીટરની રાખ્યા હોય આખા દેશભરની અંદર, તો આનાથી કોઈ મોટો ફરક પડે એમ લાગતું નથી. ખાલી આ દેખાડવા માટે થોડો સમય ભલે બંધ રહેશે, પરંતુ આની આ જ ઘટના ચાલુ રહેશે. ઓકે દર્શક મિત્રો, સમય ઓછો પડી રહ્યો છે, પરંતુ આ એટલો મોટો વિષય છે કે જેની પર વર્ષોથી ચર્ચા ચાલતી આવી છે. એવું નથી કે પહેલી વખત વિવાદ થયો હોય. જે ચેનલના નામ અત્યારે બોલાય છે, જે ચેનલ ભૂતકાળમાં પણ થોડાક સમય પહેલા પણ આ જ મુદ્દા પર વિવાદમાં હતી, પણ ચર્ચા એટલા માટે કરી રહ્યા હતા કે આનાથી જર્નલિઝમ એટલે કે પત્રકારત્વ ખતમ થઈ રહ્યું છે. એન્ટરટેનમેન્ટ ચેનલ બની રહી છે, ન્યૂઝ ચેનલ જે સમાજ માટે, સોસાયટી માટે કે દેશ માટે પણ ખતરનાક છે. પણ સવાલ ત્યાં થાય છે કે પ્રજાથી લઈને સિસ્ટમમાં બેઠેલા લોકો કે પછી સરકાર, આ પણ કેટલા જવાબદાર છે કે જે લોકો પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એક હિસ્સો બને છે ડિઝાઇન કરવા માટે કે આ પ્રકારનું કન્ટેન્ટ વેચવામાં આવશે તો લોકોને ગમશે અને પીરસીશું તો લોકો સ્વીકારશે પણ ખરી, અને એના માટે જ વ્યાપારીકરણ વધારે થશે. તો એક પ્રોફિટના ભાગરૂપે ભલે ને પત્રકારત્વ કે દેશનો ચોથો આધારસ્તંભ જે કહેવાય છે મીડિયા, એ ભલે ખતમ થતું હોય, તો આ ખતમ થવા પાછળ અથવા તો એની પાછળના કયા પરિબળો છે, એમાં જે વાત કરી પ્રમાણે સરકારથી લઈને પ્રજા સુધીના દરેક માધ્યમો જવાબદાર માનવામાં આવી રહ્યા છે. પણ જોવું રહ્યું કે હવે આ કયા પ્રકારની કાર્યવાહી આમાં થાય છે અને 3 મહિના પ્રતિબંધથી ટીઆરપી રેટિંગ ડેટા જાહેર નહીં કરવાથી શું ફરક પડી જશે એ પણ જોવું રહ્યું. આ ચર્ચાને અહીંયા સમાપ્ત કરે છે. આ ચર્ચામાં ત્રણેય ભાગ લીધો તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો ફરી મળીશું દર્શક મિત્રો લોકમંચમાં એક નવા વિષય સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.